Hello students, in today's lecture on system of particles and rotational motion, we shall have discussion on rolling motion. Rolling motion, dear students, already we discussed the meaning of translational motion as well as rotational motion. Now, what is rolling motion? In your daily life, all of you observe this motion. A cycle, wheel of a cycle which is moving on a road is having rolling motion. Wheels of all vehicles moving on road are having rolling motion. So rolling motion is the combination of rotational and translational motion. A motion which is the combination of rotational and translational motion is known as rolling motion. किसी भी रिजिड बॉडी के द्वारा यदि एक साथ टुगेदर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों परफॉर्म किया जाता है तो हम कहेंगे कि वो रिजिड बॉडी किस में है, रोलिंग मोशन में है। जैसे कि व्हील्स ऑफ ऑल व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके जो पहिए हैं वो कौन सी मोशन परफॉर्म करते हैं, रोलिंग मोशन। और जो रोटेशनल मोशन है, ध्यान रखिए, वो विदाउट स्लीपिंग होना चाहिए। रोटेशनल मोशन विदाउट स्लीपिंग होना चाहिए। जैसे विदाउट स्लीपिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने कई बार व्हीकल का पहिया किसी गीली मिट्टी में फंसे हुए देखा होगा, तो जब गीली मिट्टी में धंस जाता है पहिया तो वहां पर वो स्लिप करने लगता है। तो जब स्लिप कर रहा है तो वो केवल और केवल जो है प्योर रोटेशनल मोशन हो गई। ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन है वो, वहां पर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। लेकिन जब विदाउट स्लीपिंग कोई व्हीकल का व्हील मूव करता है तो उस समय उसके पास रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन दोनों होती हैं। तो रोटेशनल मोशन विदाउट स्लीपिंग, दिस इज द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, विदाउट स्लीपिंग होना चाहिए। और ट्रांसलेशनल मोशन, so a rigid body which is having the combination of both rotational as well as translational motion is known as rolling motion. For example, wheels of all vehicles are having rolling motion. Now we try to understand the rolling motion with the help of an example. Here I consider one rigid body. Suppose this is the rigid body, a spherical rigid body. If I consider a spherical rigid body like this, okay, this is one spherical rigid body. क्या है ये, spherical rigid body, spherical rigid body, this is spherical rigid body. Okay, this spherical rigid body is having a radius. Suppose the radius of this rigid body, I consider this is the center of this rigid body, and the radius of the rigid body is capital R. Here I write the radius of the rigid body as capital R. This is the radius. Okay, R is the radius of this rigid body, and this one is the center. Okay, so this distance will also be the radius of this rigid body, which is also equal to capital R. This is also equal to capital R. This one is the center of this rigid body. Okay, so this is the center. बेटे अच्छे से समझते चलिए पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक स्फेरिकल रिजिड बॉडी कंसीडर किया है और ये सेंटर है, और इसका रेडियस कितना है रिजिड बॉडी का, कैपिटल आर। यदि यहां से यहां तक कैपिटल आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा, 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 ये भी कैपिटल आर होगा। सो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिजिड बॉडी. Okay. Also we consider that this rigid body which is of spherical shape is moving with angular velocity omega. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोड पर इस तरीके से रोलिंग मोशन में है. आई कंसीडर दैट दिस इज द सरफेस ऑन विच दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग, right, is in rolling motion, not rotating. Suppose this is the surface on which this rigid body, spherical rigid body, is in rolling motion. Okay, so omega is what? Omega is angular velocity with which this spherical rigid body is
performing rolling motion. Obviously this omega is defined in case of rotational motion. आप सब जानते हैं यहाँ पर ये जो स्फेरिकल रिजिड बॉडी है जिसको आप व्हील के जैसे इमेजिन कर सकते हैं, एक पहिया इमेजिन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये गाड़ी का पहिया है, ठीक है। तो ये गाड़ी का पहिया जब आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और दूसरा ये रोल भी कर रहा है, ये रोल भी कर रहा है, ठीक है। रोटेशनल मोशन भी यहाँ पर है क्योंकि इसके डिफरेंट पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होगा, आप जानते हैं इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन सभी पार्टिकल्स का वेलोसिटी अलग अलग होगा। जो पार्टिकल इस जगह होगा, ये इस जगह जो पार्टिकल होगा, सपोज मैं यहाँ पर एक पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक पार्टिकल है P0 और इस P0 का जो स्पीड होगा, आप सब जानते हैं लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। और क्यों होगा ये हम यहाँ पर जानेंगे। एक पार्टिकल मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पर ये पार्टिकल P1 है और P1 का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो तो डेफिनेटली कितना होगा, V1 होगा, V1 होगा। और यहाँ पर जो इसका लीनियर वेलोसिटी होगा P0 पार्टिकल का, वो 0 होगा। क्यों होगा अभी हम जानेंगे। देखिए, और एक पार्टिकल मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, मान लेते हूँ ये पार्टिकल P2 है, ठीक है। ये पार्टिकल P2 है जो कि इस सेंटर से, ये सेंटर क्या कहलाएगा, ये सेंटर जो होगा रिजिड बॉडी का, ये सेंटर ऑफ मास होगा। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। यदि ये रिजिड बॉडी, यदि ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में भी है, तो जो स्पीड इस सेंटर ऑफ मास का होगा वही इस रिजिड बॉडी का एज ए होल स्पीड होगा। एज ए होल इस रिजिड बॉडी का स्पीड भी वही होगा। यानी ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी होगा इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का, वो क्या होगा, VCM होगा। यानी जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड होगा, सेंटर ऑफ मास ये इस तरफ जा रही है, ये जो रिजिड बॉडी है इस तरफ मूव कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा डेफिनेटली इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, ठीक है। VCM, इसको हमने क्या लिख दिया, VCM लिख दिया, ठीक है। VCM होगा इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। जितना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा उतना की उतना इस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन के केस में क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी है, यहाँ पर कौन सी मोशन है, रोटेशनल मोशन भी है और विदाउट स्लीपिंग है। तो जब विदाउट स्लीपिंग रोटेशनल मोशन हो रही है तो P0 का जो वेलोसिटी है, मैंने आपको बताया लीनियर वेलोसिटी P0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ये जो V1 है बेटा, ये V1 आप लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जानते होंगे। लीनियर वेलोसिटी के केस में हम कहते हैं जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू, यदि हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, तो लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, R इंटू ओमेगा के बराबर होती है। जहां पर R जो है पोजीशन हो गया। जैसे इस पार्टिकल की यदि मैं बात करूं, इस पार्टिकल P2 की मैं बात करूं, P2 पार्टिकल का जो इस सेंटर से डिस्टेंस है ये पोजीशन बताएगा, स्मॉल r, ये पोजीशन बताएगा। अब इस P2 पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। P2 पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी मैं मान लेता हूं कितना है, मान लेता हूं इसका लीनियर वेलोसिटी VR, ये VR लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस लीनियर वेलोसिटी से मूव करेगा, भाई इस P2 पार्टिकल पर इस VCM का भी इफेक्ट होगा। VCM इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में VCM है, ठीक है या नहीं। इस सेंटर ऑफ मास का भी तो यहाँ पर इफेक्ट होगा, VCM तो इस डायरेक्शन में होगा। और ये जो R है, पोजीशन है, इसके साथ ये जो VR है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इन दोनों का VR और VCM का जो रिजल्टेंट आएगा वही तो इस पार्टिकल P2 का वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा। इस पार्टिकल P2 का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, V2 होगा, जो कि रिजल्टेंट होगा VR और VCM का, VR और VCM का। अब जो VR है यहाँ पर, VR तो क्या हो गया, ये लीनियर वेलोसिटी ये हो गया VR, इसी को हम VR कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, VR कह रहे हैं। R ओमेगा हो गया, ये R हमने यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस ले लिया R, ठीक है। VR इज इक्वल टू R ओमेगा, ये बात यहाँ पर निकल के आई। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखें VR की वैल्यू R ओमेगा है, VR की वैल्यू R ओमेगा है, तो V1 क्या होगा, यहाँ पर देखें कि V1 क्या होगा। देखिए V1 इज पैरेलल टू VCM, V1 इज पैरेलल टू VCM है, यानी V1 जो है पैरेलल है VCM के।
देखिए बेटा, फिर से आप देखिए एक बार, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रोलिंग मोशन जो यहाँ पर हो रही है, इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी की रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग हो रही है। कैसे हो रही है? विदाउट स्लीपिंग। कहाँ पर हो रही है? एक लेवल्ड रोड पर हो रही है। किस पर हो रही है? लेवल्ड रोड या सरफेस पर हो रही है। किसी समय जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर पार्टिकल P0 है इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का, ये रेस्ट में होगा, क्योंकि यहाँ कोई स्लिपिंग नहीं है। यदि ये पहिया स्लिप करता, यदि ये रिजिड बॉडी स्लिप करती, तो उस केस में P0 जो है पार्टिकल है वो रेस्ट में नहीं होता। ठीक है, लेकिन अभी ये रेस्ट में है। यदि हम मान लें कि VCM इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, विच इज द सेंटर ऑफ मास इज C, विच इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल रिजिड बॉडी। इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा C, यही तो सेंटर ऑफ मास होगा, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? VCM है। VCM है, तो उस केस में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होगी डिस्क की, इस डिस्क की एक डिस्क कह सकते हो आप, इसको स्फेरिकल रिजिड बॉडी कह सकते हो, इसकी जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वो किसके पैरेलल होगी? इस VCM के पैरेलल होगी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। भाई, ये रिजिड बॉडी की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो रोटेशन है इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का, जो रोटेशन है इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का, इस जो एक एक्सिस होगा, यहाँ पर साफ्ट होगा, इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं ये कोई व्हील है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। इसमें पेन ऐसे खड़ा करता हूं तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, तो जो रोटेशन है इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी का इस सिमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है, इसके अबाउट ये रोटेशन में है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन में है। तो जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल P2 का, ये पार्टिकल P2 का जो वेलोसिटी होगा वो किसका वेक्टर सम होगा? वो वेक्टर सम होगा किसका? पार्टिकल V2 जो होगा ये वेक्टर सम होगा VR और VCM का। किसका? VR और VCM का। VR और VCM का ही तो रिजल्टेंट आएगा ये। VR और VCM का रिजल्टेंट आएगा कौन? V2। ठीक है, V2 आ जाएगा। अब VR की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? VR जो कि लीनियर वेलोसिटी है, जो कि रोटेशन के कारण लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल के पास। ये जो VR है बेटा, ये जो वेलोसिटी आ रही है पार्टिकल P2 के पास, ये लीनियर वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ रोटेशन। बिकॉज ऑफ रोटेशन, रोटेशन के कारण इस पार्टिकल P2 के पास इतनी लीनियर वेलोसिटी है VR, जो कि किसके बराबर होगा? ओमेगा को मल्टीप्लाई करते हैं इस डिस्टेंस से, इस पार्टिकल P2 का सेंटर से जो डिस्टेंस है, VR इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इसको लिख देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जो VR है, ये जो VR है इस R के परपेंडिकुलर है, R के परपेंडिकुलर है। तो जो वेलोसिटी होगा V2 का पॉइंट, ये जो वेलोसिटी V2 होगा इस पार्टिकल P2 का, पार्टिकल P2 का जो वेलोसिटी V2 होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा VR और VCM का। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये जो पार्टिकल P0 है, इस पर आइए। पार्टिकल P2 की बात हो गई, पार्टिकल P0 की बात करते हैं। अब ये पार्टिकल P0 जो है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इस पार्टिकल P0 की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी रोटेशन के कारण। इस पार्टिकल P0 की जो रोटेशन के कारण लीनियर वेलोसिटी होगी उसका डायरेक्शन ये होगा, ऐसे घूम रहा है ये विदाउट स्लीपिंग। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि कैसे पार्टिकल P0 जो है रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 कैसे है। तो देखिए, जब ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी रोटेशन में है तो इस पार्टिकल P0 की जो लीनियर वेलोसिटी होगी रोटेशन के कारण वो इस डायरेक्शन में होगी, जो कि किसके अपोजिट है? VCM के अपोजिट है। जो कि किसके अपोजिट है? VCM के अपोजिट है। और इस VCM के जब ये अपोजिट है, VCM के जब ये अपोजिट है, कौन? जो लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल P0 की, जो कि BR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोटेशन के कारण ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये अपोजिट है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ये ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी और ये रोटेशन के कारण लीनियर वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं कहूं कि जो ये VR है ये किसके बराबर आ जाएगा? VR की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R। सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ? कैपिटल R। तो इस जगह जो VR होगा वो किसके बराबर होगा? R इंटू कैपिटल R इंटू ओमेगा। स्मॉल r इंटू ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। जैसे यहाँ पर स्मॉल r इंटू ओमेगा आया था VR,
तो वैसे ही यहां पर क्या आएगा, इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है पार्टिकल पी जीरो की, कैपिटल आर है, तो इसका वी आर कितना आ गया, आर इंटू ओमेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है। और वीसीएम भी कितना है, व्हाट इज वीसीएम, वीसीएम वीसीएम जो होगा आपका, वो वीसीएम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी इतना ही है, आर ओमेगा है। वीसीएम जो होगा यहां पर कैपिटल आर इंटू ओमेगा होगा। ठीक है, अब कैपिटल आर इंटू ओमेगा जब वीसीएम है और विदाउट स्लीपिंग जब ये क्या नाम से रोल कर रहा है स्फेरिकल रिजिड बॉडी, तो अब देखिए यहां पर ये आर ओमेगा और ये आर ओमेगा है या नहीं, ये आर ओमेगा, ये आर ओमेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो जो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी आएगी पार्टिकल पी जीरो की इस जगह, वो क्या आ जाएगी, पार्टिकल पी जीरो की जो वेलोसिटी आएगी, पार्टिकल पी जीरो की जो वेलोसिटी है उसको मैं लिख दूं यहां पर वी जीरो से, तो वी जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वी जीरो इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी जीरो, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी पी जीरो। ठीक है, पी जीरो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी जीरो आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि जितना वी आर है, ये जो आपकी रोटेशन के कारण लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल पी जीरो की, वो आर ओमेगा है, और ट्रांसलेशनल मोशन के कारण वेलोसिटी इतनी है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये पार्टिकल किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो ये पार्टिकल रेस्ट में होगा कब, जब ये स्फेरिकल रिजिड बॉडी विदाउट स्लीपिंग रोटेशन करे। विदाउट स्लीपिंग जब रोलिंग मोशन करता है तो उस केस में ये पार्टिकल जो कांटेक्ट में है इस सरफेस के, वो रेस्ट में होगा। ठीक है, लेकिन V1 क्या होगा, V1 की बात यहां पर करें। V1 देखिए, V1 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ VCM। V1 किसकी डायरेक्शन के अलोंग है, VCM की डायरेक्शन के अलोंग है। और V1 वैसे होगा क्या, व्हाट इज V1, V1 यानी पार्टिकल P1 का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, देखिए जरा आप, P1 पार्टिकल इस सेंटर से, इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। तो ये r इंटू ओमेगा, तो ये आ गया, इस सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ रोटेशन। लेकिन इसका इफेक्ट भी तो आएगा VCM का, तो यहां पर किसको जोड़ना पड़ेगा हमें, VCM को ऐड करना पड़ेगा, VCM को प्लस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2VCM, क्योंकि ये भी तो VCM हो गया एक तरह से, ये दोनों बराबर हैं, आर ओमेगा और VCM दोनों बराबर हैं, तो 2VCM आ जाएगा। तो यानी ये जो पार्टिकल है जो टॉप पर है, एकदम टॉप पर जो पार्टिकल है, वो सेंटर ऑफ मास के डबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखिए कंक्लूजन देखिए, इस सेंटर ऑफ मास से डबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो पार्टिकल यहां पर है जो सरफेस के कांटेक्ट में है वो जीरो वेलोसिटी से, ये जीरो, ये आर ओमेगा वेलोसिटी से, और ये 2 आर ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगा। किससे मूव करेगा, 2 आर ओमेगा वेलोसिटी से। इस 2VCM भी लिख सकते हो, 2 आर ओमेगा भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम ये रोलिंग मोशन इस स्फेरिकल रिजिड बॉडी के लिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। हम डिराइव करना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। रोलिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये बात हम यहां पर करना चाहेंगे। तो देखिए, कोई रोलिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी जैसे कि आप ले सकते हो कोई व्हील, ये व्हील ले लिया, जैसे कि मैंने ऊपर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस पूरे स्फेरिकल रिजिड बॉडी को। मैं अगेन यहाँ पर रोलिंग बॉडी के लिए ये एक व्हील कंसीडर कर लेता हूँ, और मान के चलता हूँ कि ये जो व्हील है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस सरफेस पर, इस रोड पर ये मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका ये जो है सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास का, इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है उसको मैं VCM कंसीडर कर लेता हूँ। इसे कितना कंसीडर कर लेता हूँ, VCM। इसको कितना कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पर, VCM। ये यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका, ये जो वेलोसिटी है ये VCM है, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, जो जैसा ऊपर एक्सप्लेन किया वही यहाँ पर मैंने बना दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो रेस्ट में होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो डबल स्पीड से मूव करेगा, जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। यदि इसकी रेडियस r है तो VCM क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा हो जाएगा। और इस पार्टिकल की ये P0 है, और ये आपका P1 पार्टिकल है, तो P1 पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी 2r ओमेगा होगी, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2VCM होगी। कैसे होगी मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब देखिए, जब ये व्हील रोल करता है, जब ये व्हील रोल करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, द काइनेटिक एनर्जी
kinetic energy as the kinetic energy of a body rolling without sleeping, बिना स्लिप किए रोल कर रहा है, इज क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। दो टाइप की मोशन यहां पर हो रही है, ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है और रोटेशनल मोशन हो रही है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगी और रोटेशनल मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैं कह सकता हूं कि जो इस व्हील की टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर रोटेशनल मोशन भी है। इन दोनों का सम होगी। अब देखिए जरा, ऑलरेडी हमने ये बात की हुई है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ध्यान कीजिए। हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव भी किया है। यहां पर आई क्या है? इस व्हील का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। आई इस व्हील का क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्सिया है। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो इतना हो जाएगा। ट्रांसलेशनल कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब v की जगह क्या आएगा भाई? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आएगा। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इस व्हील का कितना होता है? जितना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है, तो vcm हो जाएगा यहाँ पर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? यदि इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ गया हाफ के से रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी को। तो सिंपली यहां से एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वही सिस्टमेटिकली हमने इसको लिख लिया। अब देखिए जरा यहाँ पर जो VCM है, VCM क्या है? VCM ऑलरेडी मैंने आपको बताया। व्हाट इज VCM? R इंटू ओमेगा है या नहीं? क्योंकि R तो रेडियस हो गया इस व्हील का और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो VCM तो R ओमेगा है। और I क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्सिया है इस व्हील का। और ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसके बराबर होगा? जब मोमेंट ऑफ इनर्सिया की हम बात करते हैं, तो यदि व्हील का मास मैं m मानता हूं, तो रेडियस ऑफ जायरेशन k ले लें, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन k ले लें, तो m इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ k m इंटू के स्क्वायर, ठीक है। k क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन है। k क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन है, ठीक है। k क्या हो गया यहाँ? रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे, ठीक है। चलिए, इन VCM की ये वैल्यू रख दीजिए और I की ये वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। I की वैल्यू रख दें। I की पहले वैल्यू हम रख दें। I की वैल्यू क्या है? एम के स्क्वायर रखें I की वैल्यू, और ओमेगा की वैल्यू रख दें। देखिए यहां से ओमेगा निकाल लेता हूं मैं। ओमेगा कितना आ जाएगा? VCM अपॉन R। तो मैं इसमें VCM की फॉर्म में इस फॉर्मूले को निकालना चाहता हूं कि VCM के टर्म में ये फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ओमेगा की जगह VCM अपॉन R रख दीजिए और I की जगह एम के स्क्वायर रख दीजिए। और ये यहाँ स्मॉल m लिया है, तो यहाँ भी आप स्मॉल m ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर, I इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्मॉल m लिया है रिजिड बॉडी का मास, तो स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो I की जगह ये रखिए और ओमेगा की जगह ये रखिए, तो क्या हो जाएगा देखिए। Therefore, this kinetic energy of rolling motion में जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह क्या लिखेंगे? एम के स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की जगह क्या है? VCM अपॉन कैपिटल आर, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। जस्ट हमने आई की वैल्यू रख दी और ओमेगा की वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें। हाफ एम VCM स्क्वायर प्लस
इसको लिख सकते हैं हाफ एम के स्क्वायर वी सी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर ये कॉमन आ गया, और यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आया, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। रोलिंग ऑब्जेक्ट की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी। रोलिंग ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम बी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रोलिंग ऑब्जेक्ट की टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। चलिए इसको एक हम क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। और कई बार ये डेरिवेशन तो आता ही है एग्जाम में, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे कि बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 7.16 क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, थ्री बॉडीज ए रिंग, एक रिंग है, ए सॉलिड सिलेंडर, ए सॉलिड सिलेंडर, a solid cylinder and a solid sphere, and a solid sphere. Three bodies, a ring, एक रिंग है, एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है। ये थ्री बॉडीज रोल डाउन होती हैं, रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन, सेम इंक्लाइंड प्लेन पर, सेम इंक्लाइंड प्लेन, सेम इंक्लाइंड प्लेन पर ये रोल डाउन होती हैं विदाउट स्लीपिंग। तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया लगभग वही केस बन रहा है, एग्जैक्टली वही केस बन रहा है लगभग। क्या, रोल डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लीपिंग। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये तीनों रेस्ट से स्टार्ट होती हैं। द रेडियाई, बेटा एक की रेडियस है तो उसको रेडियस बोलते हैं, और एक से ज्यादा रेडियस है तो रेडियाई, प्लूरल हो गया ये रेडियस का क्या हो गया, प्लूरल हो गया, रेडियाई। द रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल। रेडियाई यानी रेडियस, तीनों बॉडीज की रेडियस सेम है। विच ऑफ द bodies reaches the ground with maximum velocity, reaches the ground with maximum velocity, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है क्या, उसको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज पहले तो देखिए थ्री बॉडीज, एक रिंग मतलब ये हो गया रिंग, ठीक है, ये रिंग को मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना लेता हूं, दिस इज माय रिंग, ओके, एंड द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज, रेडियस ऑफ द रिंग मान लेते हैं कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, दूसरा कौन है, सॉलिड स्फीयर ले लीजिए, सेम रेडियस का सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं, ये है सॉलिड स्फीयर, दिस इज माय सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, solid sphere, same radius means this one is the center and this is the radius, same radius capital R radius है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, कैपिटल R is the radius of this solid sphere। ठीक है, तीसरा है क्या, ओहो दूसरा था सॉलिड सिलेंडर, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं। चलिए ये सॉलिड सिलेंडर हम बना लेते हैं, दिस इज माय सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, दिस इज
द सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, शेडेड कर देते हैं, ये सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर, और इसका रेडियस भी उतना ही है जितना कि स्फीयर और रिंग का है। ये कैपिटल आर रेडियस का सॉलिड सिलेंडर है, ये है सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, किसी एंगल थीटा पर ये इंक्लाइंड है, और इधर से मैं हाइट मान लेता हूं कितनी है, h है इस इंक्लाइंड पोर्शन की हाइट, और यहां से 1 बाई 1 ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है, एक साथ छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहां तो एक साथ हम दिखा नहीं सकते, इन तीनों को एक साथ यहां से छोड़ा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ आएंगे, डेफिनेटली ये यहां पहुंच जाएंगे। हमें ये बताना है कि कौन मैक्सिमम स्पीड से यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, कौन मैक्सिमम स्पीड से पहुंचेगा, यहां पर कौन मैक्सिमम स्पीड से पहुंचेगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम स्पीड है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए। देखिए, सिंस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पता होगी तो आप स्पीड निकाल पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, क्योंकि ये रोल करेंगे यहाँ पर, रोलिंग बॉडी, ये तीनों ही रोलिंग मोशन में होंगे, और अभी अभी हमने काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन के लिए पढ़ा है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। ठीक है, अब यहां पर इस देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर होते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट जब यहां पर होते हैं तो इसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ये h हाइट पर ऑब्जेक्ट होंगे तो इनके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कितने के बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होगी। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये mgh के बराबर है। k की जगह मैं mgh लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, mgh लिखा मैंने यहाँ पर, k की जगह मैंने mgh लिखा, क्योंकि यहाँ टोटल एनर्जी जो आएगी वो तो mgh ही आएगी ना। ठीक है, और टोटल एनर्जी बराबर mgh होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी mgh, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किस फॉर्म में है, mgh की फॉर्म में है, तो k की जगह mgh लिखेंगे। 0 आप ना लिखें, कहीं आप 0 लिख दें। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके इन ऑब्जेक्ट्स के पास कौन सी एनर्जी है, तो वो ये हो गई। ठीक है, ये बेसिकली टोटल एनर्जी है। क्या है ये, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, mgh है। ठीक है, mgh इज इक्वल टू हाफ एम, अब ये VCM को मैं v स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी से, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमें चाहिए मैक्सिमम स्पीड, तो मुझे v चाहिए। ठीक है, तो v का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देखिए m से m कैंसिल हुआ, और v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा व्हाट, v स्क्वायर 2 इधर जाएगा तो 2gh ऊपर हो जाएगा, 2gh, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपॉन में आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो v की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, v की वैल्यू यदि हम निकालें तो √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, मास पर डिपेंड नहीं करती है। यानी इन तीनों में से किसका मास कम है, किसका मास ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ रोलिंग बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, वेलोसिटी डिपेंड कर रही है हाइट पर, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, रेडियस पर। अब देखिए रेडियस तो सबकी सेम है, तो ये भी खत्म हो गया, h सबके लिए वही होगा,
तो ये भी मायने नहीं रखता। जी भी सबके लिए सेम होगा, केवल मायने रखेगा तो ये के मायने रखेगा रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन डिसाइड करेगा कि कौन मैक्सिमम स्पीड से यहाँ पर पहुंचेगा, यानी इन तीनों में से कौन यहाँ पहले पहुंचेगा। जिसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वही तो पहुंचेगा। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन हम पता कर लेते हैं तीनों के लिए। अब यदि हम बात करें फॉर ए रिंग, रिंग के लिए यदि मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर जो होता है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है। के स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो रिंग के लिए जो स्पीड आएगी, रिंग की जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, √2gh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी रिंग की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कितनी के बराबर आ गई, √gh आ गई। ये रिंग की स्पीड आ गई। ठीक है, एक बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। फॉर ए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के केस में क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर की जो रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर है सॉलिड सिलेंडर के लिए, वो के स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो के स्क्वायर जब इतना होता है तो सॉलिड सिलेंडर की मैं बात करूं, सॉलिड सिलेंडर की मैं बात करूं, सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर की जो स्पीड आएगी √2gh अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 है ना, के स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर अपॉन 2, तो नीचे 2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 3 अपॉन 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन 3, यानी इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी 4gh अपॉन 3। इतनी स्पीड आ गई किसकी, सॉलिड सिलेंडर की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि सॉलिड स्फीयर की स्पीड कितनी होगी। फॉर ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की मैं जब बात करता हूं तो रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए ध्यान कीजिए इतना होता है। ठीक है, तो जो सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर लिख देते हैं सिंपली, स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, मतलब 2 अपॉन 5 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करें तो ये बनेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 5 प्लस 2 अपॉन 5 आया, तो 7 अपॉन 5, 5 ऊपर जाएगा 10, 10 अपॉन 7 अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा, √10gh अपॉन 7, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से स्फीयर की जो स्पीड हम लिख सकते हैं एक तरह से, कितना आ जाएगा। अब इसको आप देखें तो ये कितना आएगा, 1.7, 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, लगभग इतना आएगा gh। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये स्फीयर की स्पीड आई। ठीक है, और यदि आप देखें तो जो रिंग की स्पीड है वो कितनी आई, √gh, और इसकी स्पीड, सॉलिड सिलेंडर की स्पीड को यदि आप और थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितनी आएगी, 4 अपॉन 3, मतलब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इस तरीके से आएगा gh। तो ये सॉलिड सिलेंडर की स्पीड आई, 1√1.33 gh। ठीक है, और इसकी √gh और इसकी 1.42 gh। तो सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, सबसे ज़्यादा यदि स्पीड हम देखें तो स्फीयर की आ रही है। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी आ रही है, स्फीयर की आ रही है। ठीक है, स्फीयर की स्पीड सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसकी है, सॉलिड सिलेंडर की है, और सबसे कम किसकी है, रिंग की है। तो मास डिसाइड नहीं करता कि कौन पहले पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचने वाला है, स्फीयर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि जो V का जो फॉर्मूला हमने निकाला उसमें कहीं मास का रोल नहीं है, मास पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरीके से इस
रोलिंग मोशन के एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे और हम बात करेंगे ये बात हमने की एग्जाम्पल 7.16 की। 7.15 में देखते हैं क्या है। देखिए 7.15 देखिए, ए कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक कॉर्ड है, रस्सी है, नेग्लिजिबल मास है इसका, बाउंड राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील। इस किस रिम के जो रिम है फ्लाई व्हील का उसके ऊपर बाउंड की गई है राउंड तरीके से। और फ्लाई व्हील का मास आपको 20 किलोग्राम दे रखा है, रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ए स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर। हालांकि इसमें फिगर दे रखा है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से ये फिगर हमें दे भी रखा है। ये 25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ये आपका फ्लाई व्हील है, इसके ऊपर ये कॉर्ड रस्सी इस तरीके से बाउंड की गई है। इस फ्लाई व्हील का रेडियस कैपिटल आर जो कि बराबर है 20 सेंटीमीटर के। इसका मास हमें दे रखा है 20 किलोग्राम। ठीक है, द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सल। एक हॉरिजॉन्टल एक्सल पर ये टिका हुआ है। ठीक है, विद फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स, इसमें फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स लगी हुई है एक्सल में। तो आपको क्या क्या निकालना है? द एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। नंबर 2, द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। तो वर्क डन बाय द पुल मतलब 25 न्यूटन के द्वारा कितना वर्क डन होगा जब 2 मीटर कॉर्ड, रस्सी का 2 मीटर हिस्सा जो है अनबाउंड कर दिया जाता है। बहुत सारी रस्सी लपेटी हुई है उस फ्लाई व्हील पर। फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। कंपेयर आंसर्स टू पार्ट बी एंड सी। बी और सी में जो आंसर्स आते हैं उनको कंपेयर करना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है एंड एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट भी है। तो एग्जाम्पल 7.15 एनसीईआरटी एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें एक फ्लाई व्हील दे रखा है। इस फ्लाई व्हील के ऊपर एक रस्सी है जो कि बाउंड की हुई है। रस्सी लपेट देते हैं ना बहुत सारी बेटा। ठीक है, और ये अपने एक्सेल पर यहाँ पर फिक्स्ड है। एक्सेल पर फिक्स्ड है। इसका रेडियस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में लिखोगे तो 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। और मास दे रखा है इस फ्लाई व्हील का आपको कितना? 20 किलोग्राम। ठीक है, इसके ऊपर एक रस्सी लपेटी गई है। रस्सी केवल इससे पास नहीं हो रही है, बहुत सारी रस्सी को लपेट दिया गया है। इसके ऊपर कई इस तरीके से बाउंड कर दिया गया है रस्सी को। और ये मान लीजिए इस तरीके से बाउंड किया हुआ है रस्सी को, कई चक्कर इस पर रस्सी को लपेटा हुआ है। और रस्सी का एक हिस्सा इस तरीके से नीचे यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया जाता है कितने का? 25 न्यूटन का। तो 25 न्यूटन का फोर्स लगाने से इस रस्सी का इस फ्लाई व्हील के ऊपर जो रस्सी बाउंड की है आपने वो रस्सी कितनी अनबाउंड हो जाएगी? 25 न्यूटन का फोर्स लगाने से कितनी रस्सी अनबाउंड हो जाएगी ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगुलर एक्सिलरेशन पूछा है। इसमें क्या पूछा है? एंगुलर एक्सिलरेशन। तो सबसे पहले मैं एंगुलर एक्सिलरेशन की बात करूं। एंगुलर एक्सिलरेशन आपको निकालना है तो कोई रिलेशन जानते हैं क्या? यहाँ पर कौन सी मोशन होगी? रोटेशनल मोशन हो रही है। और रोटेशनल मोशन के लिए आप जानते हैं जब सिंगल फोर्स लगता है तो टॉर्क डेवलप होता है। यहाँ इस डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप हो रहा है। ठीक है, टॉर्क डेवलप हो रहा है। इसका अपना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा इस फ्लाई व्हील का। ठीक है, तो टॉ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं इसका टॉर्क निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फोर्स है और मेरे पास इसका रेडियस भी है। क्या है? रेडियस भी है। रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर इस फ्लाई व्हील का। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ से निकाला जा सकता है टॉर्क। आर कितना है? 20 सेंटीमीटर को हम ऐसे लिख दें -10⁻⁻² मीटर, ये आर। और एफ कितना है? 25 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा?
25 इंटू 2500, 500 और इंटू 10⁻⁻², तो ये आ गया आपका 5 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। ये हमने टॉर्क निकाल लिया। और जब टॉर्क आ गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वेयर होगा। एम इंटू आर स्क्वेयर होगा या कुछ और होगा? फ्लाई व्हील है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकालना है, इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है। एक्सिस के अबाउट फ्लाई व्हील का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क जैसा हो जाएगा, अपॉन 2 होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना। अब मास तो हमें दे रखा है 20 और आर का वैल्यू भी है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर है, अपॉन 2 है। और 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 आ जाएगा। और यहाँ से इसको कैंसिल करें तो 10 आ जाएगा। 400 इंटू 10 4000 आया। और ये आ जाएगा आपका 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टॉर्क आ गया, तो इस फॉर्मूले से अब एंगुलर एक्जिलरेशन निकाला जा सकता है। देयरफॉर एल टॉ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। इसको यूज करके आप एल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे? टॉ अपॉन आई। और टॉ का वैल्यू कितना निकाला आपने? 5। और आई का वैल्यू कितना निकाला? 0.4। सॉल्व करेंगे तो 50/4 आएगा, पॉइंट रिमूव करेंगे तो। और ये आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और ये आ जाएगा आपका सिंपली 25 ना पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्योंकि ये देखिए, ये न्यूटन मीटर में है, ये आपका न्यूटन मीटर में है, और ये जो आई है ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर में है। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, किलोग्राम मीटर, न्यूटन पर किलोग्राम पर मीटर आया, न्यूटन पर किलोग्राम पर मीटर आया, न्यूटन पर किलोग्राम पर मीटर आया। और इसको लिख सकते हैं आप, क्या ये है आपका एंगुलर एक्जिलरेशन, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जा सकता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एंगुलर एक्जिलरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या पूछ रहा है? फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन द 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। जब इस 25 न्यूटन फोर्स लगाने से 2 मीटर रस्सी अनबाउंड हो जाती है, तो इस 25 न्यूटन के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? सिंपली फोर्स हो गया 25 न्यूटन और अनबाउंड कितना हुआ? 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो गया, तो वर्क डन आ जाएगा आपका 25 इंटू 2। तो वर्क डन जो है सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया वर्क डन के लिए। वर्क डन, वर्क डन बाय द पुल यानी फोर्स कितना, कितना फोर्स आप लगा रहे हैं? 25 न्यूटन, इसी को तो पुल कह रहे हैं। इन अनवाइंडिंग 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड, 2 मीटर ऑफ कॉर्ड को अनवाइंड करने से जो वर्क डन होगा W, वो क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ फोर्स कितना है? फोर्स यहाँ पर कितना है? सिंपली फोर्स 25 न्यूटन है, और ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। ये मीटर को लिखने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 50 जूल आ गया। इतना वर्क डन होगा पुल के द्वारा, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी व्हील की? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, अब व्हील कौन सी मोशन में है? रोटेशनल मोशन में है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील कितनी होगी? फ्लाई व्हील की जो काइनेटिक एनर्जी होगी रोटेशनल मोशन के लिए कितनी होती है? इतनी होती है, आप जानते हैं, इतनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ओमेगा चाहिए। क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए। अब ओमेगा क्या होगा? देखो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये मैंने थर्ड इक्वेशन
बताया था रोटेशनल मोशन के लिए। अब यहाँ पर जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो तो जीरो है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, और तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 2 की जगह 2, अल्फा कितना आया था हमारा, अल्फा आया था हमारा 12.5, 12.5 ये अल्फा आया था। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा यदि देखें तो कितनी रस्सी को अनबाउंड किया, 2 मीटर को, और रेडियस कितना है व्हील का, वही एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो 2 मीटर तो अनबाउंड की। यहाँ पर आप रफ में अलग से लिख सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो हो जाएगा कितनी रस्सी आपने अनवाइंड की, कितनी रस्सी अनवाइंड की, 2 मीटर, ठीक है। और रेडियस कितना है व्हील का, व्हील का रेडियस आपको दे रखा है कितना, 20 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 मीटर, ये रेडियस दे रखा है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये पॉइंट रिमूव किया तो 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए अब आप इसको सॉल्व कर ले, 4 4 5 20 2 4 2 जा 8 2 10 0 4 500 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 200 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, इसको सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2.5 आएगा, ये 5/2 इंटू 10 रेज टू द पावर +2 होगा, ठीक है, इंटू 10 रेज टू द पावर +2 होगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 250 क्या ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 250 क्या, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना इसलिए। तो ओमेगा की वैल्यू अब यहाँ रख दो। आई की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, कितनी आई थी आई की वैल्यू 0.4, और ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली कितनी 250, ठीक है। सॉल्व कर लें तो 0.2 इंटू 250 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा तो, और ये हो जाएगा 2/10 इंटू 250, 0 से 0 कैंसिल होगा, 50 जूल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 50 जूल आ गई, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी जो गेन होगी फ्लाई व्हील को, इतनी फ्लाई व्हील को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 25 न्यूटन फोर्स लगाने से। पार्ट डी की बात करते हैं। कंपेयर आंसर्स टू पार्ट बी एंड सी। पार्ट बी और सी में जो आंसर आए हैं वो कितने हैं, आंसर्स इन पार्ट बी, पार्ट बी वर्क डन कितना था 50 जूल। आंसर इन पार्ट सी क्या था, काइनेटिक एनर्जी कितना 50 जूल, है या नहीं। तो आंसर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी गेन हो रही है व्हील के द्वारा वो किसके बराबर है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी तो हो गई एनर्जी गेंड, ये तो एनर्जी उसको मिल रही है, एनर्जी गेंड बाय फ्लाई व्हील, ठीक है, फ्लाई व्हील के द्वारा इतनी एनर्जी गेन हो रही है। और W क्या है, W है वर्क डन बाय द पुल, वर्क डन बाय पुल, यानी फोर्स के द्वारा। फोर्स कितना लगाया था आपने 25 न्यूटन, तो इसका मतलब दैट इज जितना वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी गेन हो गई, दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। यदि दोनों मिसमैच होते तो फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस होता, लेकिन दोनों सेम आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7.14 देखिए क्या कह रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, उसे इंक्रीज किया जाता है फ्रॉम 1200 रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम का फुल फॉर्म, रोटेशन 1 मिनट में
कितने रोटेशन हो रहे हैं? 1200। इससे इस 1200 आरपीएम से कितने बढ़ाया जा रहा है? 3120 आरपीएम। आपने देखा होगा जो मोटर आप लेके आते हैं 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर या 1.5 हॉर्स पावर, उसमें आरपीएम होता है कि कितना वो राउंड करती है। तो 1 मिनट में कितना राउंड कर रहा है ये मोटर व्हील? 1200। इस 1200 से कितना इंक्रीज हो रहा है? 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। 16 सेकेंड में इतना हो जाता है। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सिलरेशन? जब एंगुलर स्पीड बढ़ रही है तो डेफिनेटली एंगुलर एक्सिलरेशन उसको रिसीव होगा। वो कितना होगा ये पता करना है। अज्यूमिंग द एक्सिलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम? इंजन ने कितना रिवोल्यूशन कर लिया इस टाइम में, ये भी हमें पता करना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये तो। एग्जाम्पल 7.14 इसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल 7.14 में हमें क्या दे रखा है? पहले पार्ट 1 में हम एंगुलर एक्सिलरेशन की बात करेंगे। तो देखिए, गिवन दैट बात हो रही है मोटर व्हील की, तो ये व्हील है, मान लीजिए ये मोटर व्हील है कोई, ठीक है, मोटर व्हील है। तो क्या दे रखा है इसमें? इसमें आपको दे रखा है कि एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा की वैल्यू वो 1200 आरपीएम से कितना कर दिया जाता है? 3120 आरपीएम हो जाता है। कितने समय में होता है? टाइम दे रखा है 16 सेकेंड में हो जाता है। तो आरपीएम एंगुलर एक्सिलरेशन कितना होगा? तो पहला एंगुलर एक्सिलरेशन यानी अल्फा चाहिए। तो आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल मोशन के लिए ये होता है। अब यहाँ पर ओमेगा जीरो की यदि मैं बात करूँ, भाई मुझे ओमेगा जीरो की वैल्यू मिल रही है, मिल जाएगी आराम से। देखो ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है ना 1200 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। रिवोल्यूशन पर मिनट ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ऐसे होता है ना, तो ये मिनट में ध्यान रखना, इसको सेकंड में बदलना होगा हमें, ठीक है। और तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई एफ जीरो प्लस एल्फा इंटू टी। अब 2 इंटू पाई एफ की वैल्यू कितनी है? जो ओमेगा मतलब फाइनल वाला है ये 3120 है, इंटू 3120 पर मिनट है। मिनट का मतलब 60 सेकेंड करना पड़ेगा आपको, समझ में आ गया? पर मिनट था ना, इसको पर सेकेंड करना है तो अपॉन मिनट की जगह 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 2 पाई एफ जीरो यानी इनिशियल 1200, तो 1200 पर मिनट है तो पर सेकेंड करने के लिए 60, और ये 2 पाई एफ जीरो हो गया, प्लस एल्फा निकालना है, टी कितना है? 16 सेकेंड, ठीक है, हो गया या नहीं? अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। ये हो गया 5 से 30 और 2 ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं 20, तो ये कितना आ गया? 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 पाई इज इक्वल टू ये कितना आ गया? 40 पाई प्लस 16 अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 16 अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा? 104 पाई माइनस 40 पाई, ये आ जाएगा। तो 104 में से 40 माइनस करें तो 104 में से 44 6, ये आ जाएगा 64 पाई, और ये 16 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 64 अपॉन 16 पाई, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 16 से ये 64 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, 4 पाई आया, और 4 पाई किस में? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, पाई की फॉर्म में ही लिख दो। ये आ गया एंगुलर एक्सिलरेशन। क्या आ गया? एंगुलर एक्सिलरेशन, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि यदि एंगुलर एक्सिलरेशन को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लें, ठीक है, तो कितने रिवोल्यूशंस इंजन करेगा इस 16 सेकंड में? 16 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे वो हमें पता करना है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता करने के लिए देखिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता करने हैं यानी आपको इसके लिए फिर डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, और एक रिवोल्यूशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई होगा, आप जानते हैं भाई। इस देखिए मैं यहाँ पर इसके जरिए समझाता हूँ। ये व्हील है, ठीक है,
ये व्हील जब रिवोल्यूशन करता है तो वन रिवोल्यूशन किसके बराबर है? 2 पाई। 360 हो गया ना बेटा, 2 इंटू 180, 2 पाई लिख सकते हैं उसको, पाई की फॉर्म में लिखिए 360। ठीक है, ये वन रिवोल्यूशन का होता है। तो मुझे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता लग जाए कितने टाइम में? 16 सेकंड में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 16 सेकंड, ये मैं पता कर लूं। ये जब मुझे पता हो जाएगा तो फिर मैं आराम से नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 16 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, हाँ कैसे निकालेंगे, किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 16 सेकंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 16 सेकंड में पता करने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं। यानी इसमें पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा। इसको पता करने के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट, कि भाई 16 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? 16 सेकंड में आपको क्या पता करना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा ना बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब हमें पता हो जाएगा तो हम फिर वन रिवोल्यूशन में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हम पता कर लेंगे। क्योंकि जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस क्या होंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बराबर होगा, आप कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 16 सेकेंड। ठीक है, 16 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिवाइडेड बाय वन रिवोल्यूशन। ये आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन देगा। लेकिन क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? तो इक्वेशन है हमारे पास, थीटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो, है ना। थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो नहीं, वी ओमेगा जीरो टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये होता है। अब थीटा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा जीरो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओमेगा जीरो की जो वैल्यू आई थी, देखिए जरा, ओमेगा जीरो की वैल्यू 40 पाई आई है। कितनी आई है? 45। जब इसको हमने सॉल्व किया 2 पाई एफ जीरो, ये ओमेगा जीरो ही तो है, और ये कितनी वैल्यू आ गई? 40 पाई आएगी, 40 पाई। ठीक है, 40 पाई, और टी कितना है? 16 सेकेंड, प्लस 1/2 एल्फा कितना निकाला हमने? 4 पाई, और टी कितना है? 16 होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा? 640 पाई प्लस ये 2 पाई हो जाएगा, और इंटू 16 इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 640 पाई प्लस 32 इंटू 16 इतना आ जाएगा पाई। और इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों को ऐड करें, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1152। यही हुआ ना, 1152 पाई, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब जब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होंगे? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अब आराम से पता कर लेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यही तो पता करना है हमें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 1152 पाई, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, और डिवाइडेड बाय वन रिवोल्यूशन में कितना? 2 पाई। वन रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 576 इतने रिवोल्यूशंस होंगे। ये आंसर हो गया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होंगे? 576 इतने रिवोल्यूशंस होंगे। ठीक है, इतने रिवोल्यूशंस होंगे। चलिए अब देखिए, इससे पहले वाला जो एग्जांपल है 7.13, ऑब्टेन इक्वेशन 7.38 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी 7.38 का मतलब ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस एल्फा टी, इसका डेरिवेशन पूछ रहा है। तो डेरिवेशन मतलब डिराइव करना है हमें। तो प्रूफ ऑफ किसका? ये में 7.13 एग्जाम्पल है। प्रूफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू
ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, इसको पूछ रहा है। ये कैसे डिराइव हुआ? तो देखिए, सिंस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एंगुलर एक्सिलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, यहां से डी ओमेगा निकालो, अल्फा इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है या नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, टाइम का, जीरो से टी। तो जब जीरो टाइम है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जीरो। ठीक है, और जब टाइम टी हो गया, जब टाइम टी हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो जानते ही हो, डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, लिमिट्स ओमेगा जीरो से ओमेगा इज इक्वल टू एल्फा कांस्टेंट एक्सिलरेशन हम मान रहे हैं, डी टी का हो गया टी और लिमिट जीरो से टी। तो ये देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सॉल्व करो, क्या आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो बराबर अल्फा टी, और इसका मतलब क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसे हम डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन को। ठीक है, सेकंड रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम डिराइव कर सकते हैं, सेकंड रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है ना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, उसका यूज करो, आ जाएगा। उसे भी बता देता हूँ, चलो। प्रूफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, इसका प्रूफ चाहिए। तो सेंस आप देखिए, इसको लिखिए, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इंटू डी टी आ जाएगी, और ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी और इंटू डी टी, ऐसे लिख दिया इसको। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो तो ओमेगा जीरो डी टी प्लस अल्फा टी डी टी ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दो, डी थीटा ओमेगा जीरो डी टी प्लस इंटीग्रेशन अल्फा टी डी टी, जीरो से टी टाइम का इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी टाइम के रेस्पेक्ट में है, जीरो से टी, क्योंकि ओमेगा जीरो तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर एक्सिलरेशन है, ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। और थीटा, जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है तो थीटा क्या है, थीटा को आप जीरो ले लीजिए। ठीक है, थीटा को जीरो ले लो, थीटा जीरो लेंगे तो फिर यहाँ थीटा जीरो ऐड होके आ जाएगा, आप जीरो लीजिए। ठीक है, ये थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा। ओमेगा जीरो का होगा नहीं, डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, ये हो जाएगा। एल्फा को बाहर ले लेंगे, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो। ठीक है या नहीं? ये मैंने आपको कई बार बता दिया, वैसा ही प्रोसेस है जैसा कि हमने लीनियर मोशन वाली इक्वेशंस को डिराइव किया था। तो आ गया, देखो आ गया इक्वेशन, इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव कर सकते हो रोटेशनल मोशन के लिए, उसे भी बता देता हूँ। प्रूफ ऑफ थर्ड कौन सी है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, इसका प्रूफ चाहिए। तो इससे प्रूफ करने के लिए आप देखिए कि इसका यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए बेटा ओमेगा, तो ओमेगा चाहिए, तो आप देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आप एल्फा 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 इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है ना, तो इसमें आप क्या कीजिए, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा से डिवाइड और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको आप देखिए, डी थीटा अपॉन डी टी को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ये क्या है, ओमेगा है, तो इधर लिख दिया डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से एल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा आ गया नहीं? ठीक है, और यहाँ इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एल्फा डी थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे एल्फा डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन जीरो से थीटा कर दो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन ओमेगा जीरो से कहाँ होगा, ओमेगा,
क्योंकि 0 पर ओमेगा 0 है एंगुलर वेलोसिटी। अब ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट ओमेगा 0 से ओमेगा। यहाँ पर अल्फा का होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। डी थीटा का क्या होगा बेटा, डी थीटा का क्या होगा, डी थीटा का क्या होगा, थीटा। तो ये थीटा और लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू थीटा माइनस 0, ये आ जाएगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो आ गया ना इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। बोलिए, वही प्रोसेस है, केवल सिंबल्स में चेंज आ गया है। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे और हम एक छोटा सा लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।